सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो। जी हाँ सर। ओके। पिछले लेक्चर में हम ये ड्राइव किए थे, मास और अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू जी प्लस एस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई. In this lecture, I will derive this formula where V is volume of soil, Vs is volume of solid, and E is void ratio. From figure, volume of soil is equal to volume of solid plus volume of void. We know the void ratio of E is equal to volume of void divided by volume of solid. So the volume of void will be equal to E times of volume of solid. अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ void की जगह पे हम लोग E टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे पुट कर देंगे. So the volume of soil is equal to volume of solid plus E times of volume of solid. So the volume of soil is equal to, now take volume of solid common, this will be equal to 1 plus E. So the formula is volume of soil is equal to volume of solid into 1 plus E. This is the important formula. यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. हेलो. हेलो. किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। ओके. बोलते रहो बीच बीच में, आपको पता ही नहीं चलता तुम लोग का आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है. When two or more soils are mixed with each other, जब दो और दो soil को हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है? This is soil A, this is soil B, and this is resultant soil. This is the volume solid. So this is the weight of solid of soil A. This is the weight of solid of soil B. If we add two soil, this is soil A. This is the phase diagram of soil A. This is soil B. This is the phase diagram of soil B, and this is the resultant soil. This is the phase diagram of resultant soil. If we add two soil, then weight of solid of resultant soil will be equal to weight of solid of soil A plus weight of solid of soil B. Weight of solid of soil A is equal to 10 gram. So this is 10 gram plus weight of solid of soil B. This is 20 gram. This is equal to 30 gram. So the weight of solid of resultant soil will be equal to 30 gram. किसी कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नाउ वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? वेट ऑफ वाटर ऑफ सॉइल ए, this is 5 gram. Weight of water of soil B, 2 gram. What is the weight of water of soil resultant soil? बताओ कितना होगा वेट ऑफ 7 ग्राम वाटर ऑफ? सर। 7 gram. Weight of air is negligible, so weight of air will be 0 gram. Now what is the volume of resultant soil or volume of solid of resultant soil? Volume of solid of soil A is 4 centimeter cubic, cc is centimeter cubic. Volume of soil B, volume of solid of soil B is 8 centimeter cubic. Now what is the volume of solid of the resultant soil? 12 सेंटीमीटर क्यूब। 12 centimeter cubic. This is equal to volume of solid of soil A and volume of solid of soil B, that is 8 plus 4, that is 12 centimeter cube. Now volume of water of resultant soil, ये कितना होगा?
बताओ। हेलो, what is the volume of water of resultant soil? सेवन cc सर। 7 cc। इतना टाइम क्यों लगाते हो? This is the volume of water of soil A. This is the volume of water of soil B. The resultant will be equal to summation of volume of water of soil A and volume of water of soil B. That is 5 plus 2 centimeter cube. That is 7 centimeter cubic. What is the volume of air of resultant soil? 10 cc सर। 10 cc। ये गलत है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम सॉइल को मिक्स करते हैं, ये सॉइल ए रहा, ये सॉइल बी रहा, ये रिजल्टेंट सॉइल रहा। जब सॉइल को मिक्स करते हैं तो इन्वायरमेंट क्या प्रेजेंट है? एयर। तो जो मिक्स करने के बाद ये भी हो सकता है, जो एयर जो प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, हम पढ़े हैं ना, सॉलिड प्लस वॉइड होता है। वॉइड में एयर भी होता है, वॉइड में एयर प्लस वॉइड में एयर प्लस वाटर होता है। इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, और जब मिक्स करते हैं तो ये भी हो सकता है सॉइल के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो बाहर चले जाए, एयर बाहर चला जाए, और ये भी हो सकता है इन्वायरमेंट से जो एयर है वो सॉइल में इंटर कर जाए। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो यहाँ पे होगा, ये मे बी 10, मे बी ग्रेटर देन 10, मे बी लेस देन 10। समझ रहे हो? हेलो, हेलो, यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है सर। ओके। देखो, जब दो सॉइल हम मिक्स किए हैं तो क्या क्या चेंज नहीं हुआ है? वेट ऑफ सॉलिड 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हुआ है। दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट वेट आ रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। वेट ऑफ सॉलिड नॉट चेंज। सिंबल में लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉलिड। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में चेंज आया है क्या? हेलो, यस सर। क्या चेंज है? 4 था, ये 8 है। 4 सेंटीमीटर क्यूबिक, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक, दोनों को ऐड करने के बाद 12 सेंटीमीटर क्यूबिक आ रहा है। दोनों को ऐड करने के बाद ये तो आ ही रहा है, इसमें तो चेंज तो नहीं हुआ। ये चेंज कहाँ नो हो रहा सर, चेंज नहीं हो रहा है सर, आप बोले इसलिए यस बोल दिए कि नहीं, चेंज नहीं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी चेंज नहीं हो रहा, वेट ऑफ सॉलिड भी चेंज नहीं हो रहा। जब दोनों को ऐड करने के बाद तीसरा मिल रहा है तो वो चेंज नहीं हो रहा है। जो मतलब तीसरा नहीं मिलेगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। तो वेट नो ऑफ सर। वाटर, वेट ऑफ वाटर नॉट चेंज। अब देखते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर। नो सर। वॉल्यूम ऑफ वाटर ये रहा 5 सेंटीमीटर क्यूबिक, 2 सेंटीमीटर क्यूबिक, ये 7 सेंटीमीटर क्यूबिक है, चेंज नहीं हो रहा। वॉल्यूम ऑफ वाटर नॉट चेंज। अब देखो वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल चेंज हो रहा है क्या? चेक करके बताओ, वेट ऑफ सॉइल चेंज हो रहा है क्या? हेलो, नहीं सर। चेक करके देख लेते हैं। वेट ऑफ सॉइल,
वेट ऑफ सॉइल को W से रिप्रेजेंट करते हैं। वेट ऑफ सॉइल, सॉइल ए का कितना है 10 + 5 + 0 15 ग्राम। weight of soil A. Now weight of soil force of soil B, this is equal to 0 + 2 + 20, this is equal to 22 gram. Now weight of resultant soil, this is the weight of soil of B, this is the weight of resultant soil, this is equal to 0 + 7 + 30, this is equal to 37 ग्राम। अब दोनों को ऐड करके देखते हैं इतना ही आता है क्या। 5 + 2 7, 1 + 2 3, मीन्स ये ऐड करने के बाद ये आ रहा है वेट ऑफ रिजल्टेंट सॉइल, मतलब वेट ऑफ सॉइल चेंज नहीं हो रहा है, वेट ऑफ सॉइल नॉट चेंज। अब देखो वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो रहा है क्या। यस सर। वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 10 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज होगा। अब वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज होगा क्या। हाँ सर। चेक करके देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम लोग देखें वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो रहा है, जब वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड भी चेंज होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो द वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी चेंज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज। नाउ विल चेक वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज चेंजिंग और नॉट। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो रहा है क्या। हेलो, यस सर। वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो रहा है, चेक करके देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये होता है। किसी में डाउट है इसको, किसी को डाउट है इसमें। नो सर। यहाँ पे हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो रहा है, जब वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज हो रहा होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। जब वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी चेंज हो जाएगा, सो द वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज। किसी को डाउट है कि यहाँ तक। नहीं सर। ओके रिजेक्ट हो जाएगा एक्चुअली, हम बता रहे हैं। जी सर, जी सर। इसमें क्या है ना कि वैल्यू नहीं मैच हो रहा है, हम एक इमेज भेज रहे हैं, उसको स्कैन वो नंबर डाल के उसमें भेज सकते हैं, लेकिन फिर उसका मिस मैच हो जाएगा वो। किसी को कोई डाउट है क्या। अच्छा ठीक है, इसको एक बार स्कैन कीजिए, देखते हैं। ठीक है, एक बार स्कैन कर दीजिए। हेलो, जो बोल रहे हो अपना साउंड म्यूट कर दो। किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो या पूछ सकते हो, अदरवाइज तुम म्यूट करके रखो। सबको आवाज आ रहा है तो। ठीक है सर, आपको बारकोड शेयर कर देंगे सर। हेलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। नो सर। ओके, this is the question in which following data are given for soil sample A and B. This is sample A in which void ratio is given. Void ratio is equal to 1. Total volume of soil is equal to 1 meter cube. This is sample B in which void ratio is 2 and total volume of soil is 1 meter cube. The two samples are mixed and compacted in a mold to volume of 1 meter cube. Which one of the following figures correctly indicate the porosity of the compacted soil? हमको सैंपल ए दे रखा है, सॉइल सैंपल ए
and sample B. और दोनों को ऐड कर मिक्स करने के बाद ये रिजल्टेंट सॉइल रहा। हमको सैंपल ए का दे रखा है वॉइड रेशियो इक्वल टू 1, वॉइड रेशियो इक्वल टू 1 दे रखा है सैंपल ए का, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल दैट इज V इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। And void ratio of sample B is equal to 2. Void ratio of sample B दे रखा है is equal to 2, and volume of soil, total volume, that is volume of soil is equal to 1 meter cube. Volume of soil दे रखा है 1 meter cube. उसका बोल रहा है the two sample are mixed and compacted in a mold to a volume of 1 meter cube. तो फाइनली जो रिजल्टेंट सॉइल है उसका वॉल्यूम हमको दे रखा है 1 meter cube. Which one of the following figures correctly indicate the porosity of the compacted soil? हमको निकालना है porosity of the compacted soil, that is N. इसमें जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था मैंने दे दिया है, अब तुम लोग इसको सॉल्व करो। ये सैंपल ए दे चुका है जिसका वॉइड रेशियो 1 है, जिसका टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। ये सैंपल बी है जिसका वॉइड रेशियो 2 दे रखा है, टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। सैंपल रिजल्टेंट सॉइल है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 1 मीटर क्यूब, एंड हमको निकालना है पोरोसिटी। क्वेश्चन को समझने में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। सॉल्व करो इसको। सर पोरोसिटी 1.16। ऑप्शन में दिख रहा है कुछ क्या? ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन मैच करो उसमें से। रिजल्टेंट सॉइल का निकालना है पोरोसिटी ना सर? हाँ, रिजल्टेंट सॉइल का निकालना। ओके सर। किसी का आंसर आया अभी तक? कोई डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन को समझने में कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछो। क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए तो सर सॉल्व करो। सर मिक्स्ड करने के बाद वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है सर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है?
हम बोले थे ना वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी चेंज हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है 1+1 2 नहीं हो सकता है। हम बताए थे ना क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या है। ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ये कैपिटल भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल रहा, वी भी वॉल्यूम ऑफ वाइड रहा, वॉल्यूम ऑफ एयर रहा। वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाइड, वॉल्यूम ऑफ सॉइल चेंज हो जाएगा। हम बताए थे जो चेंज हो जाएगा मतलब ये दोनों को ऐड करोगे तीसरा नहीं मिलेगा। वही हम बताए थे क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा। जो चीज नहीं चेंज नहीं हो रहा उसको तुम इक्वेट कर सकते सर हो। सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ। सॉरी सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलना चाहिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल बोल दिया, वॉइड बोल दिया सर। एक हिंट दे रहे हैं तुम लोग को, अभी भी सॉल्व नहीं कर पाओ तो बहुत प्रॉब्लम है। ये फार्मूला हम बताए ना, ये वाला वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1+e। हेलो, यस सर। इस फार्मूला का यूज करो और निकालो। सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो बोलो नहीं सॉल्व हो रहा है। सर ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ट्राई करो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तुम थ्योरी पढ़ के चाहोगे हम सब कुछ समझ जाएंगे, संभव ही नहीं है। तो जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सॉल्व करो। नहीं हो रहा फिर भी ट्राई करो। ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी भी किसी का आंसर नहीं आया क्या? हेलो, सर हो रहा है सर। नो सर। देखो और हिंट दे रहे हैं। हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी दे रखा है हमको, वॉइड रेशियो भी दे रखा है। यहाँ से तुम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करो। यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है, वॉल्यूम वाइड रेशियो दे रखा है। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालो, यही फार्मूला का यूज करके वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू 1+e। ये निकल जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है। यहाँ से तुम वाइड रेशियो निकाल सकते हो। वाइड रेशियो को पोरोसिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम बता चुके हैं। यहाँ से तुम पोरोसिटी निकाल सकते हो। समझ में आया क्या बोले अभी हम? हेलो, यस। सॉल्व करो। यहाँ पर जो सर वॉल्यूम ऑफ 83% है क्या? पता नहीं, हम चेक करके कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा। तुम्हारा 83% आ रहा है ना? ठीक है चेक करते हैं। यस सर। तुम्हारा नाम क्या है? हेलो, रुपेश सर। रुपेश। यस सर। ओके ठीक है चेक करते हैं। और किसी का कोई ऑप्शन आ रहा है? सॉल्व करते हैं हम, बहुत टाइम देते तुम लोग को। यहाँ पे हमको दे रखा है वॉइड रेशियो एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल।
हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू 1 प्लस ई। हमको वॉल्यूम ऑफ सॉइल दे रखा है एंड वॉइड रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल डिवाइडेड 1 प्लस ई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज 1 मीटर क्यूब एंड 1 प्लस वॉइड रेशियो इज 1, so this is equal to 0.5 मीटर क्यूब। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? हेलो, No, sir. okay, this is the volume of No, solid sir. of soil A, sample A. Okay, now we have to calculate the volume of solid of soil B. Now use same formula, volume of soil is equal to volume of solid into 1 plus E. So the volume of solid will be equal to volume of soil divided by 1 plus E. So volume of soil is equal to 1 meter cubic divided by 1 plus E. E is equal to, this is meter cube, E is equal to 2. So this will be equal to 1 by 3 meter cubic. So this is equal to 0.33 meter cubic. Now we know that volume of resultant soil, volume of solid is not changed. So the volume of solid of resultant soil will be equal to volume of solid of soil A plus volume of solid of soil B. Volume of solid of soil A is 0.5 meter cubic plus volume of solid of soil B is equal to 0.33 meter cubic. So the volume of solid of resultant soil is 0.833 meter cubic. Now we know that volume of soil is equal to volume of solid into 1 plus E. So 1 plus, we have been given volume of soil 1 meter cubic, volume of resultant soil 1 meter cubic, and volume of solid is equal to 0.833 into 1 plus E. So the 1 plus E is equal to 1 divided by 0.833, why does E is equal to 1 divided by 0.833 minus 1. कैलकुलेट करो ये कितना आ रहा है? $0.20. $0.200. So void ratio is equal to 0.200. 0.2 लिख देते हैं. Now porosity is equal to, porosity और void ratio में क्या रिलेशन होता है? N equal to E by 1 plus E. N is equal to E divided by 1 plus E. E is equal to 0.2 divided by 1 plus 0.2. So this is equal to 0.2 divided by 1.2. हमको परसेंटेज में दे रखा है तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे. परसेंटेज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 into 100. ये कितना आ रहा है? सर 16.66. 16.66%. ऑप्शन में कोई है क्या 16.66? क्लोजेस्ट जो ऑप्शन होगा उसको टिक करेंगे. 16.66 ऑप्शन में आ रहा है. 17 सर. क्या बोल रहे हैं? 17. हाँ तो इसके क्लोज जो ऑप्शन है उसको टिक कर दोगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. देखो फेज डायग्राम पे दो टाइप का क्वेश्चन होता है. टाइप 1 में क्या रहेगा? वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, वेट इन ग्राम रहेगा, यूनिट वेट इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. सपोज वी हैव बीन गिवन वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 40% और in decimal this will be, on in fraction this will be water content is equal to 0.4. and another type is volume is in meter cubic,
weight is kilonewton and unit weight is kilonewton per meter cube. In this question, suppose we have been given water content is equal to 40%, or in fraction water content is equal to 0.4. So the water content W is equal to weight of water divided by weight of solid. So the water content will be equal to weight of water will be equal to water content into weight of solid. In our case, water content is equal to 0.4 in fraction into weight of solid. So we can write, if water content is given 40%, then the weight of water will be equal to 0.4 times of weight of solid. In this case also, weight of water will be equal to 0.4 times of weight of solid. यहाँ तक किसी कोई डाउट है? हम मान लिए हमको वेट ऑफ वाटर दिया, सॉरी वाटर कंटेंट दिया हुआ है 40% और वेट ऑफ सॉलिड दे रखा है WS. उस समय हमारा वाटर वेट ऑफ वाटर होगा 0.4 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड. यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं. हेलो. नो सर, कोई डाउट नहीं है. ओके. अब देखो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड. यूनिट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ सॉलिड. हमको पता है G इज इक्वल टू होता है, G इज ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी. दिस इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर. सो द यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू G times of unit weight of water. Now replace unit weight of solid by G into gamma W. So this will be equal to weight of solid divided by unit weight of solid will be equal to G into gamma W. So the volume of solid will be equal to weight of solid divided by G into gamma W. किसी को डाउट है इसमें? नो सर. Okay. So volume of solid is equal to weight of solid divided by G into gamma W. यूनिट वेट ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हम लोग बता चुके हैं, ये होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक. तो यहाँ पे गामा डब्ल्यू इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वही रहेगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी इंटू गामा डब्ल्यू. लेकिन गामा डब्ल्यू क्या हो सकता है? गामा डब्ल्यू हम पढ़े थे 9.81 in kilonewton per meter cube. 9.81 kilonewton per meter cube. If G is equal to 9.81, if G is equal to 10, then gamma W will be equal to 10 kilonewton per meter cubic. If G is equal to 10 meter per second square, गामा W मतलब अब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 9.81 लेना है. गामा डब्ल्यू 9.81 किलोमीटर पर मीटर. जब क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लेना है तब 10 ही लेना है, 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब. इसलिए जी का वैल्यू यहाँ पर पुट नहीं करेंगे. किसी को डाउट यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक रहेगा तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखेंगे WS डिवाइडेड बाय जी फेज डायग्राम में. और जब किलोमीटर पर मीटर क्यूब में दे रखा है तो वहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय जी इंटू गामा डब्ल्यू. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो. नो सर. ओके. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर. यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर divided by volume of water. So volume of water will be equal to weight of water divided by unit weight of water. यहाँ पर volume of water हो जाएगा weight of water divided by unit weight of water.
unit weight of water. In gram per centimeter cubic, unit weight of water is equal to 1 gram per centimeter cubic. So this will be equal to weight of water divided by 1. So this will be equal to weight of water. Means in gram per centimeter cubic हमको दे रखा है weight of water 0.4, मतलब weight of water हमको दे रखा है इन ग्राम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी वही हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर के बराबर ही होगा। यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ वाटर divided by unit weight of water. Unit weight of water in kilonewton per meter cube. It may be 9.81 or it may be 10. So I am not writing unit weight of water in kilonewton per meter cube. So the volume of water will be equal to weight of water divided by unit weight of water. यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। ओके। वॉल्यूम ऑफ एयर दिया रहेगा, नहीं तो कैलकुलेट करना होगा। अब हम कुछ फार्मूला लिख रहे हैं जो अभी तक हम बता चुके हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना है। तो अभी देखो अच्छे से हम क्या, कौन सा फार्मूला हम बता चुके हैं। फार्मूला नंबर 1, वाटर कंटेंट हम बता चुके हैं इन परसेंटेज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100 if it is in percentage, otherwise in fraction water content will be equal to weight of water divided by weight of solid simply. Formula number 2, void ratio is equal to volume of void divided by volume of solid. हम सब बता चुके हैं, अभी हम लिख रहे हैं सब फार्मूला एक साथ। परसेंटेज पोरोसिटी, पोरोसिटी इन परसेंटेज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ void divided by वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। फ्रैक्शन में रहेगा तो 100 हटा देना है। फोर्थ फार्मूला, पोरोसिटी n is equal to E divided by 1 plus E. Fifth formula is E is equal to n divided by 1 minus n, where n is porosity and E is void ratio. Sixth formula is degree of saturation in percentage equal to volume of water divided by volume of void into 100. ये सब हम बता चुके हैं, सब कॉपी पे लिख लो क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। सब सुन रहे हो? यस सर। सब कॉपी पे लिख लो, जब लिख लेना हमको बता देना। ये मीटिंग एंड हो रहा है तो फिर से सब ज्वाइन कर लेना। हेलो, यस सर। 5 मिनट के बाद फिर से सब ज्वाइन कर लेना। जब तक है तब तक फार्मूला लिख लो।